Yes, yesterday we have started with the timing diagram of 8086 in minimum mode and maximum mode. Okay, so in minimum mode we have two bus cycles, that is a read bus cycle and write bus cycle. In maximum mode also we have two bus cycles, read bus cycle and write bus cycle. Okay, I have told you that in the minimum mode I will be explaining you the read cycle and the write bus cycle. Okay, and the other two in the maximum mode you can do as a homework. Now we have started with the explanation of what is a bus cycle, and you have written that the bus cycle is the time required to make a single read or write operation between the microprocessor 8086 and the memory or IO devices. Okay, that was the explanation which we have done. I have shown you the two blocks. यहाँ पे है 8086, यहाँ पे है memory. So write operation is from memory, from microprocessor towards memory, and the read operation is from memory towards the microprocessor. तो write operation करने के लिए कितना time लगता है, that is the bus cycle. And to be more specific, write करने को कितना time लगता है, तो write bus cycle. Read करने को कितना time लगता है, तो read bus cycle. Read bus cycle. Now today we are going to understand that actually bus cycle जो होता है या फिर कितना time लगता है, how do you measure that? In what terms do you measure that? So for that I have drawn this diagram. You know that 8086 gets its clock. There is a pin which is called as a clock, and this pin clock has to be connected with 8284, which is a clock generator. Now if you see the clock generator will have a crystal frequency. Will have a crystal. You can see this is the symbol to show the crystal. And this crystal frequency, for example, is 30 megahertz. This crystal frequency is 30 megahertz. Okay, so I have a crystal frequency of 30 megahertz, and this crystal or this frequency is in the form of pulses, or you can say in the form of square waves. Okay, now whenever we say that this particular frequency is of 30 megahertz, that this 30 megahertz is not the frequency which is given directly to 8086. This frequency is divided by 3. Okay, now actually this मैंने पहले बताया था in my first introductory section that 8086 is having different versions. Some 8086 works on some other frequency, some works on other frequency. Now if this is a particular 8086 which works on 10 megahertz, then how do you get 10 megahertz? So this crystal frequency has to be converted into 10 megahertz. So the output of this will give you 10 megahertz. So I have written here capital F is equals to 30 megahertz upon 3. This clock generator is made in such a manner that the output of this will give you 30 by 3 megahertz, that is 10 megahertz as a frequency. Okay, so this is a 30 megahertz, that is a crystal which will be generated automatically because this is a crystal. This 30 megahertz is converted into 10 megahertz, and can you see now this train of pulses are given to the clock as an input to 8086. Now this 10 megahertz is now actually giving you the clock to work this 8086. I have already told you, without clock 8086 will not operate. Every operation will be in reference with the clock. Why so? We will see here now. Why it is with reference to the clock? क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली मुझे देखना है कि राइट ऑपरेशन कितने टाइम में होता है और रीड ऑपरेशन कितने टाइम में होता है. So everything has to be associated with the clock. Now this 10 megahertz, I am drawing it below here, or I am drawing it here. Okay, now see here carefully. So this 10 megahertz I am drawing it here. Okay, and you know that this frequency of 10 megahertz, that means you can assume that from negative, so this is having negative pulse and high pulse, negative pulse and high pulse, negative pulse and high pulse. So I need to find out the first cycle. So I will start from the negative. So from here to here,
From here to here, this is first cycle. This is first cycle. So I will give this as T1. I will give this name as T1. Second cycle will start from here. Again from this one. You have started from the negative. जहाँ पे खत्म हो गया वहाँ पे. Sorry, this will be till here. यहाँ तक रहेंगे वो. Again negative और खत्म हो रहा है यहाँ पे. This is the second one. Then यहाँ पे again फिर यहाँ से खत्म हो रहा है. So this is T3. And from here जहाँ पे खत्म होता है, this is your T4. और ये क्लॉक पल्स यहाँ तक खत्म नहीं होता है. दिस इज अ कंटिन्यूअस ट्रेन ऑफ पल्सेस. ये कंटिन्यूअस आते रहेगा. ये कंटिन्यूअस आते रहेगा. ये कभी नहीं रुकेगा. ये रुक गया इसका मतलब आपका ऑपरेशन भी रुक गया. ओके. एज जैसे आपको पता है कि 8086 रिक्वायर्स प्लस वीसीसी एंड ग्राउंड, वैसे क्लॉक भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक्चुअली वी सी दैट 8086 is given the power by VCC and ground. But actually this is the heart of this 8086, the clock. जैसे आपका हार्ट बीट जब तक चलता है यू आर लाइव. जैसे आपके हार्ट बीट बंद हो गए यू आर डेड. वैसे यहाँ पे भी वही है. यू कैन ट्रीट दिस एज अ क्लॉक पल्सेस. जब तक क्लॉक पल्स है वो काम कर रहा है, वो ऑपरेशन करेगा. ओके. read operation, write operation, arithmetic operation, logical operation, whatever operation it is going to do whenever it is getting the pulses. और जब pulse रुक गए it won't perform. हाँ, even though the power supply is given and the ground is there, it's okay, but the clock is required. Now this clock is a continuous one. I have drawn the clock showing you T1, T2, T3, T4, and you know that T is equals to 1 upon F. T is equal to, if I want to find out the time of one pulse, so T is equals to 1 of F. So it gives you 1 upon 10 megahertz, and it gives to you 0.1 microsecond. 0.1 microsecond. Now can I say this T1 is 0.1 microsecond? T2 is also 0.1 microsecond. T3 is also 0.1 microsecond. T4 is also 0.1 microsecond. So we have got the duration of one clock pulse, and that is 0.1 microsecond. 0.1 microsecond. Now pay attention what I am saying now. I am now saying this. The one bus cycle contains 4 T states. Now these are called as T states. T. Okay. T states. T states. Now one bus cycle consists of 4 T states. अगर मैं write operation कर रहा हूँ, a single write operation, it requires 4 T states. That is one bus cycle. अगर मैं read कर रहा हूँ, if I am reading something, so reading something, the data from the memory towards the processor will require 4 T states, because one bus cycle consists of 4 T states. Okay. So T state is nothing but T1 plus T2 plus T3 plus T4. Okay. T1, T2, T3 and T4. Now, whenever I am saying that 0.1 microsecond, that means a bus cycle consists of how many time duration? So it is 0.1 into 4. So it comes to be 0.4 microsecond. So can I comment that a write bus cycle will take 0.4 microseconds? Yes. Can I comment read bus cycle will have the time duration of 0.4 microseconds. Okay. Now we have got, now depending upon this, अभी suppose crystal frequency कुछ और है, 60 है, divide by 3, तो आपको 20 megahertz मिलेगा. Okay. 20 megahertz का, that is 1 upon 20 megahertz. So this will be again less. Okay. Now depending upon what version of 8086 you are using, the clock will be used. Okay. And this T1, T2, T3, T4, these are called as the T states. And your one bus cycle consists of 4 T states. Or it is also called as clock cycle. T1 a clock cycle, T2 a clock cycle, T3 a clock cycle, T4 a clock cycle. That is the meaning of this T states and one bus cycle.
So if you have understood this, just write down. ये सब बनाना है, ये सब बनाना है, और इसके बाद लिखना है one bus cycle contains 4 states, 4 T states, 4 T states, और 4 clock cycles, ब्रैकेट में लिखो T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4. Okay, so this is all about the T states now. Now we are now entering to understand right bus cycle क्या होता है. Okay, अभी जब हम right bus cycle पढ़ेंगे, the timing diagram, always you will be having T1, T2 and T3, and with respect to T1, T2, T3 अभी हमको देखना है T1 में क्या क्या चीजें हो रही है, T2 में क्या क्या चीजें हो रही है, T3 में क्या क्या हो रहा है, T4 में क्या क्या हो रहा है. और ये T1, T2, T3 जब लास्ट T4 होता है तब आप बोल सकते हो कि मेरा राइट ऑपरेशन खत्म हो गया, क्योंकि एक राइट ऑपरेशन के लिए आपको 4 टी स्टेट्स लगते हैं. तो राइट ऑपरेशन शुरुआत कहां से होती है? T1 से, और खत्म कहां पे होता है? T4 में. तो मुझे ये देखना है कि T1 में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, T2 में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, T3 में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, और T4 में क्या क्या हो रहा है. ये सब को कहते हैं टाइमिंग डायग्राम, ये सब को कहते हैं टाइमिंग डायग्राम. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट बस साइकिल टाइमिंग डायग्राम and read bus cycle timing diagram. If this is okay, I have to share my screen so that I can explain you. Yesterday I have shared with you the notes, the PDF notes. I hope you have gone through that. वही मैं explain करूंगा अभी. If this is okay, do you have any questions, any doubt in this, so that we can start with the read cycle and write cycle? Is it okay? Yes sir, yes sir. ये हो गया ना अभी? Shall I switch to the more this one screen sharing mode? Yes sir. Okay. The screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes. Now all of you pay attention. Now this is important. All of you pay attention. Today I am going to end this module. Next class I will start with a fresh module. Okay? तो आज मुझे खत्म करना है, इसलिए मैंने 2 आज सिखाऊंगा, बाकी के 2 घर पे करना है. Okay? Now if you see properly, see I do not have highlighter, I do not have anything. Okay? So you have to pay attention towards my words as well as have a keen observation on the screen. Okay? So if you see the diagram there, top में जो दिख रहा है, can you see the clock लिखा है left side में, and can you see the square pulses? अब मैंने जो बोर्ड पे बनाया था वैसा बनाओ अब, या फिर ऐसा बनाओ. This is not the exact square wave, but actually जो इनपुट में प्रैक्टिकली जो जाता है clock pulses वो ये फॉर्म में जाता है. Okay, so it is not the gradual up, एकदम सडन 0 से 1 नहीं जाता, या फिर सडन 1 से 0 नहीं जाता. You have a transition that is called as a propagation delay. That is called as a propagation delay. मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और स्क्रीन पे ध्यान देना है, और कहीं भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे तुरंत वहां पे रोकना है. ठीक है? सो इफ यू सी द स्क्रीन, okay, the top you have a clock and you can see here T1, T2, T3 and T4. So can I say T1, T2, T3, T4 are the one bus cycle? Yes, it is one bus cycle. It is one bus cycle. Now see, what do you mean by T state? One complete cycle of clock is called T state. One complete cycle of clock is called T states. तो जैसे मैंने बताया था, T1 एक clock, T2 एक clock, T3 एक clock, T4 एक clock. A T state is measured from falling edge of one clock pulse to falling edge of the next clock pulse. That is actually nothing but your cycle. मैंने अभी साइकिल यहाँ पे जो स्टार्ट की है, मैंने निगेटिव से स्टार्ट की है, 0 से स्टार्ट की है, बाद में वो ऊपर जा रहा है, बाद में फिर से वो ऊपर रहने के बाद नीचे आ रहा है, तो वहां तक एक साइकिल है. ओके, यू कैन कंसिडर एनी साइकिल, बट सी दैट योर साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ
निगेटिव एंड पॉजिटिव। एक साइकिल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आने चाहिए। ओके, द मशीन साइकिल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मशीन साइकिल? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने जो बोर्ड पे नहीं लिया, बट यू हैव टू सी हियर दिस मशीन साइकिल मीन्स व्हाट। द बेसिक ऑपरेशन सच एज रीडिंग बाइट फ्रॉम मेमोरी और IO पोर्ट or writing a byte to memory or IO port is called as machine cycle. तो machine cycle is what? Actually मुझे अगर कुछ रीड करना है फ्रॉम मेमोरी या फिर मुझे कुछ लिखना है मेमोरी में, तो कितना टाइम जाता है उसमें, टाइम ड्यूरेशन, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं मशीन साइकिल। वो पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं मशीन साइकिल। ओके, अभी देखो, पहले हमने टी स्टेट समझ में आया और बाद में अभी हम मशीन साइकिल समझ में आ रहा है कि मशीन साइकिल होता है जिसमें राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन करना है, तो उसमें टोटल कितना टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसका मतलब इट कंसिस्ट ऑफ T1, T2, T3, T4। ओके, क्योंकि एक बस साइकिल इज ऑफ T4। दूसरा फिर जब बस साइकिल स्टार्ट होता है वो T5, T6, T7, T8, उसमें शायद दूसरा कुछ ऑपरेशन होगा, लेकिन एक बस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 T स्टेट्स। एज फार एज योर 8086 इज कंसर्न, हर प्रोसेसर का T स्टेट्स में डिफर। ओके, तो एक मशीन साइकिल में एक्चुअली राइट ऑपरेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन साइकिल। दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन साइकिल। अभी ये हो गया मशीन साइकिल। अभी देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल भी होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर टू फेच एंड एग्जीक्यूट वन एंटायर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। नाउ डोंट यू थिंक मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये सब है, ये सब विद रेफरेंस टू द क्लॉक है। तो कहने से माई क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या हो रहा है, अगर मुझे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मुझे वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच करना है। फेच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। तो फेचिंग से लेके एग्जीक्यूट करने तक एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, नाउ मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 806, प्लीज रिकॉल, जो मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको मिनिमम मोड भी सिखाया, मैक्सिमम मोड भी सिखाया। ओके, सो आई वोंट वेस्ट माय टाइम इन एक्सप्लेनिंग दिस, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। You have to do by yourself, and जो मैंने आपको पढ़ाया, that is the only there. Okay, here addition thing is that you can see there is a RAM and ROM. ROM में मेरे instructions, ROM में मेरे instructions होते हैं opcode के फॉर्म में, और RAM में मेरा डेटा होता है, टेम्पररी डेटा। ओके, तो आई एम यूजिंग बोथ दिस पर्टिकुलर ROM and RAM। ओके, तो ROM और RAM के एड्रेस के लिए यू कैन सी A0 to A19। तो दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी आई हैव गिवन। इसमें सिर्फ आपको RAM और ROM दिखाया और IO डिवाइस दिखाया। मैंने वहां पे सिर्फ ट्रांस रिसीवर तक दिखाया था। मैंने बताया था आपका डेटा ट्रांस रिसीवर के थ्रू ही माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका मेमोरी का डेटा ट्रांस रिसीवर के थ्रू, ROM का डेटा ट्रांस रिसीवर के थ्रू, IO डिवाइस का डेटा ट्रांस रिसीवर के थ्रू, और उसका देख रहा है, उसका दिखा है आपको, उसका जो बस है, डेटा बस है, उस साइज देखिए उसकी, D0 से लेके D50, सबसे नीचे वाला D0 से लेके D50, और वो एड्रेस देखा A0 से लेके A19। ओके, बाद में आप ट्रांस रिसीवर के पहले देखो वो बस। ओके, सो एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। सबसे ऊपर देखो DMUX। So can I say DMUX is not your that is 3:8 decoder, because I am talking about minimum mode. I am talking about minimum mode. Minimum mode में आपके पास है 3:8 multiplexer, DMUX decoder, 3:8 decoder, और आपके पास मैक्सिमम मोड में क्या है, आपके पास है 7 bus controller. You have a bus controller, and what is the name of that bus controller? It is 8288. You have 8288. Okay, so as far as minimum mode is concerned, you have 3:8 decoder, and you can see the output of decoder, that is memory read, memory write, IO read, IO write. Okay, so everything we have seen. So I'm not going to waste my time in explaining this. We'll go to the read cycle now. Yes, come here, and this is the read cycle. सर एक डाउट पूछूं मैं? हाँ सर, इसके भी प्रीवियस स्लाइड में सर वो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल था सर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल इक्वल्स 1 टी स्टेट? बिकॉज वो सर वहाँ पे लिखा है फेच। हाँ ना, नहीं, टू फेच
टू फेच बोले तो वो ऑपकोड मेमोरी में से लेना, वो ऑपकोड मेमोरी में से लेना, मेमोरी में से लेने के बाद बीआईयू में जाना, बीआईयू में जाने के बाद ईयू में आना, ईयू में उसको एग्जीक्यूट करना। ये सब करने को जितना टाइम लगता है एक इंस्ट्रक्शन को करने को, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। एंड कोई कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने को ज्यादा टाइम लग सकता है, कोई कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कम टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम लगेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग टाइम लग सकता है। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप एक्चुअली कौन सा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो। तो हम जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे ना तो हमको ये समझ में आएगा। ओके, और मैं ये भी कमेंट कर सकता हूँ, टू एग्जीक्यूट द होल प्रोग्राम यू रिक्वायर मेनी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स। क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम बोले तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, योर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड you require to execute one instruction, you require instruction cycles. I'm not sure कि हर एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है, बट दे डिफर। ओके, सो इंस्ट्रक्शन साइकिल is from fetching towards executing. Okay. Okay, sir. Yes, come back to the read cycle now. This is important, read cycle. Yes. Now I want everyone's a keen observation on this. मैं इसको जरा सा broad करता हूँ. Okay. Is it visible to everyone now? Yes, sir. कुछ ब्लड नहीं हो रहा ना? नहीं सर। हाँ ठीक है। अभी मैं जो बताऊंगा उस पर अभी बराबर ध्यान देना है और ये समझना है। एक्चुअली दिस इज द टाइमिंग डायग्राम, दिस इज द टाइमिंग डायग्राम एंड दिस इज अ स्पेसिफिकली टाइमिंग डायग्राम फॉर रीड साइकिल। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज अ रीड साइकिल इन मिनिमम मोड ऑफ 8086। ओके, अभी सबसे पहले मैंने एक क्लॉक बनाया। अब ये क्लॉक के रेफरेंस में ही सब जो नीचे लिखा है वो सब एक्सप्लेनेशन होने वाला। क्लॉक के नीचे जो भी कुछ लिखा है ये ऐसे नहीं लिखा है, दिस इज अप टू द स्केल, अप टू द स्केल, दिस इज अप टू द स्केल। आप जब भी बनाओगे इसको तो यू हैव टू ड्रॉ अप टू द स्केल। वो कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ क्लॉक, सबसे ऊपर देखो क्लॉक, वहां पे मैंने क्या किया है, वहां पे मैंने T1, T2, T3 और T4 बताया, दैट इज वन बस साइकिल। और हम पढ़ने जा रहे हैं रीड बस साइकिल में क्या होता है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू इमेजिन दैट रीड बस साइकिल में मेरा डेटा मेमोरी में है। ओके, मेरा डेटा मेमोरी में है और वो डेटा मुझे मेमोरी से लेके मुझे माइक्रो कंट्रोलर में लाना है। ओके, तो वहां से डेटा लेना, शुरुआत कहाँ से होंगी, एड्रेस, वो लोकेशन का एड्रेस निकालना, वो लोकेशन का एड्रेस मिलने के बाद वहां से डेटा लेना, डेटा लेने के बाद वो डेटा बस पे डालना, डेटा बस पे डालने के बाद वो डेटा फ्लो होगा टुवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये सब करने को बोलते हैं रीड बस साइकिल। तो हमको अभी ये देखना है कि T1 में क्या क्या हो रहा है, T2 में क्या क्या हो रहा है, T3 में क्या क्या हो रहा है, T4 में क्या क्या हो रहा है। इसलिए अप टू द स्केल में जब बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कि आपको T1 जो दिख रहा है ना, तो आपको वर्टिकली T1 का वर्टिकली डॉट 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 बना के नीचे तक लाना है, ताकि आप बता सको कि T1 में एक्चुअली ये सब हो रहा है। वैसे T2 को भी आपको डॉट 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 लेके ऐसे लाइन बनाना है नीचे, T3 को भी वैसा, T4 को भी वैसा, ताकि प्रॉपरली समझ में आए कि T1 में क्या क्या हो रहा है, T2 में क्या क्या हो रहा है और T3 में और T4 में क्या क्या हो रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग वन बाय वन। ओके, आई हैव आस्क्ड यू टू इमेजिन दैट मेरा मेमोरी से डेटा लेके मुझे माइक्रो प्रोसेसर में डालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने ऑलरेडी ये सब सिखाया आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और ये with reference to this block diagram, with reference to this timing diagram, you have to understand. Okay, अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एड्रेस चाहिए मुझे, क्योंकि एड्रेस चाहिए बिकॉज एंड यू नो दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट T1 क्लॉक साइकिल यू हैव एड्रेस, क्योंकि मुझे अगर एड्रेस ही नहीं पता तो मैं डेटा कहाँ से लेके आऊंगा। तो इफ यू सी केयरफुली हियर, सेकेंड वन क्लॉक तो हो गया, अभी सेकंड पे जाओ, सेकंड पे देखो क्या है, सेकंड पे क्या लिखा है, A19/S6, A16/S3 एंड BHE बार S7। तो इसमें से आई एम इंटरेस्टेड इन एड्रेस। ओके, सो उसके नीचे भी देखो AD0 से लेके AD15
और उसके ऊपर देखो A16 से लेके A19। तो सबसे पहले T1 स्टेट में एड्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि T1 में पहले एड्रेस काम करता है, क्योंकि एड्रेस ही बता पाता है कि वो डेटा मेरा कहाँ पे है। इफ यू सी केयरफुली, ओके, तो ये सेकेंड वाला देखो, A19 to A16 वाला, आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दिखेगा, ओके, बाद में आपको एक सीधी लाइन दिखेगी और बाद में फिर से वो बड़ा होते दिख रहा है, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट योर एड्रेस कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस। तो अगर वो नीचे जा रहा है तो वो जीरोस है, और वो अगर ऊपर जा रहा है तो 1 है, इसलिए वो वैसा बनाया है, इसलिए वो वैसा बनाया है, ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू सी केयरफुली, T1 के नीचे देखो एड्रेस लिखा है, BHE बार आउट दिखा है। तो T1 में पहले क्या होता है, आपका एड्रेस जाता है एड्रेस बस में। तो एड्रेस जाता है एड्रेस बस में, तो आई वांट A0 से लेके A19, और आपको पता है AD0 और A15 मल्टीप्लेक्स है, एंड दे आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स बोले तो ये टाइम में पहले एड्रेस बस जैसे काम होगा, और बाद में वो बस डेटा जैसे काम करेगा। यानी ये पहले वाला टाइम स्लॉट एड्रेस को दिया है, उसके बाद वाला टाइम स्लॉट डेटा को दिया है, इसलिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के हिसाब से वो काम करता है, ओके। तो मैंने क्या बताया था, इफ यू सी इट इज ब्रॉडन, वो जरा सा मोटा है। वो मोटा क्यों है वो डायग्राम? ओनली बिकॉज योर एड्रेस कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस, योर एड्रेस कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस, ओके। तो वो ऊपर की जो लाइन है, वो जो मोटा दिख रहा है, ऊपर की जो लाइन है वो 1 रिप्रेजेंट करती है, और नीचे की लाइन है वो 0 रिप्रेजेंट करती है। तो आपको 1010 कैसे भी लिखना है लिख सकते हो, लेकिन उसका जो विड्थ है उसका मतलब होता है your address can be in the form of ones and zeros, and it is obvious your address is not only 0000 या फिर नहीं 1111। अगर 000 है तो सिर्फ नीचे की लाइन दिखनी चाहिए, but I am explaining you in broader sense, so I have shown you that this address is shown in the broader way, okay। जो वो जरा सा मोटा दिखा है, ओके। तो पहले T1 में ये हो रहा है कि पहले आपका एड्रेस, तो कैन यू सी सेकेंड वाला, सॉरी हाँ, पहला तो क्लॉक है, उसके नीचे वाला जो सेकेंड है उसके नीचे वाला थर्ड है, तो सेकेंड एंड थर्ड इज एक्चुअली योर एड्रेस आउट। कैन यू सी योर एड्रेस आउट? तो T1 में देखो पहले एड्रेस आउट हो रहा है, T1 में पहले एड्रेस आउट हो रहा है, ओके। उसके नीचे देखो, आपको पता है मुझे एड्रेस चाहिए। Now you just go back to the minimum mode configuration, that is a block diagram. आपको अगर एड्रेस चाहिए तो डोंट यू थिंक यू वांट ALE, आपका ALE हाई होना चाहिए, बिकॉज आपका एड्रेस जो है वो एड्रेस लैच में लैच होता है, ओके। और एड्रेस लैच का IC कौन सा है जो हमने पहले पढ़ा है, दैट इज 8282। सो 8282 इज द एड्रेस लैच, और एड्रेस लैच को एनेबल करने के लिए यू हैव ALE। तो अगर आप ALE को देखोगे, ALE इज द पिन, जो ये जो नीचे वाले हैं ना, ये सब पिन्स है, ये पिन्स है। तो रीड ऑपरेशन के लिए कौन से पिन्स कब हाई होते हैं, कब लो होते हैं, कौन से टाइम पे हाई होते हैं, कौन से टाइम पे लो होते हैं, वही टाइमिंग डायग्राम है। तो जैसे क्लॉक के नीचे मैंने एड्रेस बताया A16 to A19 और BHE बार, उसके नीचे मैंने बताया AD0 to AD15 का क्या स्टेटस रहेगा T1 में। उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ कि ALE का क्या स्टेटस रहेगा T1 में। अभी मैंने वही बताया था कि एड्रेस मुझे चाहिए, योर एड्रेस शुड बी डीमल्टीप्लेक्स फ्रॉम द डेटा, दैट्स व्हाई योर ALE शुड बी हाई। कैन यू सी हियर, पहले ALE 0 रहता है और T1 में तुरंत वो हाई हो गया, एंड फॉर द टाइम ड्यूरेशन कितने के लिए हाई रहेगा? T1 ड्यूरेशन के लिए वो हाई रहेगा, अभी ALE के बाद नीचे आ जाओ, अभी नीचे में क्या है, M/IO बार, मुझे रीड करना है ना, दिस इज अ रीड साइकिल, एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी, तो वो M/IO बार का जो लाइन है वो देखो क्या है, पहले 0 था और T1 में देखो सब ऊपर ही हो गया, और वो ऊपर कब तक है, जब तक आप मेमोरी से वो डेटा रीड नहीं करते हो। डोंट यू थिंक दैट लाइन इज 1 टिल T4 गेट्स एंडेड, T4 जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मुझे वो लाइन को 1 रखना है। और 1 क्यों रखना है? बिकॉज इट इज M/IO बार, मेमोरी रीड के लिए M इज एक्टिव हाई, IO बार के लिए इट इज एक्टिव लो। अगर यही लाइन को मुझे अगर IO डिवाइस से रीड करना है, सो दिस लाइन बिफोर T1 will be high, and
इन द T1 स्टेट इट बिकम्स लो, और वो लो कब तक रहेगा? वो लो रहेगा T4 तक, वो लो रहेगा T4 तक। प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कान खोल के प्रॉपर सुनो और पूरा फोकस स्क्रीन पे रहने दो ताकि प्रॉपर समझ पाएंगे। ओके, मैं क्या बता रहा था? m/io bar, आई एम रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी, दैट्स व्हाई m इज एक्टिव हाई। एक्टिव हाई बोले तो 1 होना चाहिए, सो इट इज पहले 0 था और T1 में वो 1 पे चला गया, और कब तक है? वो T4 तक। और वही अगर मुझे IO डिवाइस से रीड करना है तो ये जो लाइन है वो पहले हाई रहेंगी और T1 में वो फिर लो रहेंगी, और लो कब तक रहेंगी? T4 तक लो रहेंगी। ओके, तो ये हो गया m/io bar के बारे में। उसके बाद नीचे देखो RD बार। अभी मुझे रीड करना है ना, तो रीड करना है तो मेरा RD बार क्या चाहिए? इट शुड बी रीडिंग, आई हैव टू रीड दिस, आई हैव टू रीड द डेटा। So see this is very important, please have attention. RD bar is active low, so to read the data this should be low, but during P1 RD bar is high. RD bar is high. Why during P1 your RD bar is high? Only because अभी सेकंड और थर्ड वाला देखो, सेकंड और थर्ड एड्रेस के बारे में आपको मैंने बताया था कि T1 में एड्रेस पहले जाता है और T1 के बाद फिर आपका डेटा जाता है। ओके, सो सीयर सेकेंड वाला देखो, AD0 से लेके AD15, AD0 से लेके AD15 आपका डेटा बस कौन सा है? D0 से लेके D15। इसलिए ये थर्ड वाला जो है AD0 से AD15 वाला जो डायग्राम है वो देखो प्रॉपरली। पहले एड्रेस आउट हो रहा है T1 स्टेट में, और थोड़ा पोर्शन T2 का भी, तब T2 का भी सॉरी T2 का आधा पोर्शन भी एड्रेस आउट हो रहा है। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है T3 में। देखो क्या हो रहा है T3 में, फिर डेटा आपका आउट हो गया, सॉरी इन हुआ, एड्रेस आउट हो गया। उसको कितना टाइम लग रहा है? T1 का पूरा और T2 का आधा। उसके बाद डेटा, क्योंकि एड्रेस आउट होने के बाद मुझे लोकेशन मिल गया मेमोरी में, अभी वो मुझे डेटा उधर से लेना है और डेटा बस पे डालना है। तो देखो T3 में वो डेटा इन आ गया, T3 में डेटा इन, इसका मतलब एड्रेस लोकेशन मिलने के बाद मुझे डेटा मेमोरी से लेना है और लेके डेटा बस पे डालना है। डेटा बस कौन सा? D0 से लेके D15। इसलिए ये जो थर्ड वाला जो है ना, उसी पे आपको डेटा दिख रहा है, फर्स्ट वाले पे डेटा नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाले पे क्या दिख रहा है? स्टेटस आउट, स्टेटस आउट। आपका कौन सा स्टेटस है? सेकंड वाला देखो, S3 S6, S3 से लेके S6। S3 और S6 का क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ S3 से लेके S6? दैट इज द स्टेटस। तो वो स्टेटस बताता है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। ओके, S3 to S6, just a minute, let me see, S3 to S6, yes, that is a status bus, that is a status bus. Okay, so it shows the operation which is happening, microprocessor कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, that is shown there. Okay, so that is S3 S4 S5 S6. Okay, so it is giving S3 and S4 indicates the segment being accessed during the current bus cycle. ये सब मैंने लिख के दिया है। Okay, S3 S4 indicates the segment being accessed during the current bus cycle. अभी ये मैं डेटा ले रहा हूँ मेमोरी में से। Can anyone of you tell me which segment I am using? Can anyone of you tell me which particular segment I am using from the memory? No one? How many segments you have? 4. Extra segment, data segment, stack segment, and code segment. I want to read the data from the memory. So which segment I have to use? Or your data will be stored in which segment? So I'm audible? Yes, yes, it is a data segment. और अगर मैं बोलता था कि मुझे इंस्ट्रक्शन फेच करना है, तो आई शुड से इट इज अ कोड सेगमेंट। और आपका कोड सेगमेंट कहाँ पे होता है? ROM में। और आपका डेटा कहाँ होता है? RAM में। तो प्लीज पे अटेंशन कि मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, तो अगर मुझे डेटा लेना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू एक्सेस डेटा सेगमेंट। ओके, अभी ये देखो सेकंड वाला देखो, स्टेटस आउट।
तो ये बताता है एक्चुअली स्टेटस क्या है, कौन से S3, S4, S5, S6, ओके, एंड इवन S7. तो यू हैव टू सी वो स्टेटस पिन्स के क्या क्या फंक्शंस है एंड यू हैव टू कोरिलेट. और ये देखो स्टेटस आउट भी वो बड़ा दिखाया है. क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस. वहां पे एक ही S3 नहीं है, वहां पे S3 है, S4 है, S5, S6 है, S7 है. So there are many pins. That's why it is shown in the broader one. Okay. और थर्ड वाला देखना है कि आपला जो आपका डेटा है वो कब इन हो रहा है, T3 में इन हो रहा है. ओके. इसलिए अभी कम बैक टू द आरडी बार. ओके. तो आपका आरडी बार जो रीड करने वाला है वो एक्टिव लो है. तो वो देखो लो कहाँ पे हो रहा है, वो लो हो रहा है T2 में लो हो रहा है. और वो लो कब तक रहेगा, जब तक आप डेटा रीड नहीं कर रहे हो. और वो हाई कब हो रहा है, वो हाई हो रहा है T4 के साइकिल में, T4 के क्लॉक साइकिल में वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है. सो आरडी बार इज रीडिंग योर डेटा इन बिटवीन T2, सर एक मिनट, हाँ, आरडी बार इज रीडिंग योर डेटा इन द क्लॉक साइकिल ऑफ T2, T3, और T4 में वो हाई हो रहा है. ओके. अभी देखो उसके नीचे वाला देखो. अभी नीचे देखो क्या है, dt/r बार. आपको डेटा भेजना है या रिसीव करना है? आपको डेटा रिसीव करना है. तो आपका वो पिन लो होना चाहिए. तो वो लो कब होगा, देखो फिर से विद रेफरेंस टू क्लॉक. हमेशा जो भी पिन है वो विद रेफरेंस टू क्लॉक ही काम करेंगी. तो देखो मुझे रिसीव करना है, तो वो जो dt/r बार है, ओके, तो वो देखो पहले हाई था, बाद में लो हो गया, बिकॉज इट इज रीड, एंड रीडिंग मीन्स रिसीविंग. सो वो लो हो गया है, T1 के स्टार्टिंग में ही लो हो गया है. और वो लो कब तक रहेगा, T4 के एंड तक लो रहेगा. और अगर ये राइट साइकिल रहता था तो मेरा ये dt/r बार मुझे ट्रांसमिट करना है, तो इसका उल्टा होता था. तो GT बोले तो डेटा ट्रांसमिट बोले तो इट इज एक्टिव हाई बोले तो पहले वो 0 रहेगा, और बाद में T1 के शुरुआत में वो 1 हो जाएगा. और 1 कब तक रहेगा, T4 के एंड तक 1 रहेगा. ओके. देखो इसी में मैंने आपको दोनों भी सिखा रहा हूँ, राइट और रीड बस साइकिल. ओके, प्लीज सी केयरफुली. अभी ये होने के बाद DEN बार, डेटा अनेबल. DEN बार इज डेटा अनेबल. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा अनेबल? अभी उसका भी यहाँ पे क्या काम है, because that is important. We have to understand that DN bar is also plays an important role. That is your pin number 6. Okay. क्या लिखे दिया था मैंने, एक्टिव इन मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन यूज टू अनेबल ट्रांस रिसीवर 8286. आपका ट्रांस रिसीवर के थ्रू ही डेटा रीड होगा और डेटा राइट होगा. और ट्रांस रिसीवर को अगर आपको अनेबल करना है तो DN बार आपका 0 होना चाहिए. नाउ इफ यू सी केयरफुली, आपका DN बार बिकॉज इट इज एक्टिव लो, वो देखो वो 0 कब हो रहा है, वो हाई है. कब तक हाई है, वो हाई है T2 के, हाँ T1 तक हाई है. T2 के थोड़े से पोर्शन के बाद वो लो हो गया. दैट मीन्स डोंट यू थिंक योर ट्रांस रिसीवर विल बी अनेबल्ड फ्रॉम T2? यस. जब अनेबल होगा ट्रांस रिसीवर, बाद में इट विल बी लो टिल द एंड ऑफ द T3. और T4 में वो फिर से हाई हो जाएगा. ओके. तब तक वो डेटा रिसीव कर लेगा. ओके. सो ये भी बताता है कि DN बार कितने देर तक मुझे लो रखना है, dt/r बार कितने देर तक मुझे उसको लो रखना है, RD बार भी कितने देर तक लो रखना है, m/io बार भी कितने देर तक हाई रखना है. ओके. ALE भी देखो, अभी फिर से देखो ALE सिर्फ मुझे एक छोटा सा पल्स भेजना है, पॉजिटिव का छोटा सा पल्स भेजूंगा तो एड्रेस लैच अनेबल हो जाएगा और मेरा एड्रेस लैच के बाहर एड्रेस मिल जाएगा. एड्रेस लैच अनेबल होने के बाद आपको एड्रेस लैच के बाहर आपको एड्रेस मिल जाएगा, प्योर एड्रेस, यानी डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस. ओके. अब ये देखो ALE हाई हो गया ओनली फॉर T1 के लिए. अभी अगर ALE को आप आगे देखोगे, देखो ALE फिर से हाई हो रहा है.
कैन आई से फॉर दैट इज द नेक्स्ट साइकिल नाउ? नेक्स्ट साइकिल कौन सा है? T4 T4 तो इधर खत्म हो गया, T5 T6 T7 T8, फिर से T9 T10 T11 T12। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा ये कॉमन चीजें है। ALE एड्रेस A19 to A16 एंड AD0 to AD15, ये T1 में ये चीजें आने ही वाली है। वो राइट रहे रीड रहे, क्योंकि मुझे सबसे पहले एड्रेस तो चाहिए रीड और राइट करने के लिए। मेरे पास अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो मैं रीड कहाँ से करूँ, मैं राइट किधर करूँ? तो हमेशा T1 इज डेडिकेटेड फॉर एड्रेस एज वेल एज ALE, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि एड्रेस के साथ ALE जाएगा ही। बोथ आर पार्ट एंड पार्सल, तो ALE और एड्रेस हमेशा साथ में ही जाते हैं। ओके, so this is about the read. Now I will be showing you for the write. I will take your questions after I explain the write. Okay, sir. हाँ, see here now, right side. Okay, अभी देखो राइट में क्या हो रहा है, वही क्लॉक T1 T2 T3 T4, उसके बाद एड्रेस। देखो T1 में एड्रेस और BHE आउट। अभी ये BHE बार भी इंपॉर्टेंट है। BHE bar is what? It is your bus high enable. Let me just read out what we have written for BHE bar. Yes, BHE bar में आपने लिखा था bus high enable. It is active low pin. It is used to indicate the transfer of data using the data bus D8 to D15. This signal is low during first clock cycle. This सिग्नल इज लो ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल, इसलिए मैंने पढ़ के बताया आपको। अभी यहाँ पे आपको दिखने के लिए वो ब्रॉड दिख रहा है। अगर मुझे BHE का सिग्नल अलग से अगर बताना है, अटेंशन ऑल ऑफ यू, अगर मुझे BHE बार का सिग्नल अलग से मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा? दिस सिग्नल इज लो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक, तो सिर्फ T1 का जो है ना, उसमें सिर्फ मैं स्टार्टिंग में हाई दिखाऊंगा और T1 में फिर उसको लो दिखाऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया है, अगर वो BHE भी दिखाऊंगा तो ये डायग्राम और बड़ा हो जाएगा नीचे, तो हम उसको कट शॉर्ट करके उसको यहाँ पे दिखाएं, इसलिए मैंने वो मोटे इसमें डाला है। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो मोटे का उसका मतलब ये है, why it is broadened only because it consists of address A16 to A19, S3, S4, S5, S6 as well as S7 as well as BHE bar। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है 1010। तो ऊपर वाला जो लाइन है वो है 1 का और नीचे वाला लाइन है 0 का, तो जिस जैसे कॉम्बिनेशन है वैसा वो काम करे। दैट इज द मीनिंग। ओके, स्टेटस आउट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी देखो उसके नीचे वाला AD0 to AD15 फिर से वही है, एड्रेस आउट। हाँ, अभी यहाँ पे देखो क्या है, आपका डेटा आउट। आपको डेटा देखो, अभी यू हैव टू कंपेयर नाउ, आपको कंपेयर करना है। ये देखो आपका जो रीड साइकिल था उसमें डेटा आपको कम मिल रहा था, आपको डेटा मिल रहा था T3 में और कुछ पोर्शन T4 का। ओके, ये रीड में ऐसा था। अभी राइट में क्या है आपको, अब मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, ये भी बताता मैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस मिलने के बाद तुरंत डेटा निकल गया। ओके, तो देखो T2 के स्टार्टिंग में ही निकल गया। ओके, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाई इट इज सो? वहां पे टाइम क्यों लग रहा है टू रीड द डेटा, और यहाँ पे टाइम नहीं है, तुरंत एड्रेस मिलने के बाद तुरंत डेटा आउट। कैन एनीवन ऑफ यू अप्लाई योर ब्रेन and tell me the difference? Again I'm asking you, I'm making it more simple. Why there is a delay? एड्रेस मिलने के बाद जो डिले है वो क्यों है? एड्रेस मिलने के बाद नहीं बोल सकते, जब हम एड्रेस डालते हैं उसके बाद डिले क्यों है? ठीक है, मैं ही बताता हूं। सी यार, हम जब रीड करते हैं तो वो मेमोरी से रीड करते हैं, तो मेमोरी का एड्रेस मुझे चाहिए, तो एड्रेस बस पे एड्रेस उधर जाएगा, बाद में वो लोकेशन मिलेगा और बाद में डेटा आएगा। तो ये एड्रेस को जाना मेमोरी के पास और वो लोकेशन ढूंढना, उसको टाइम लगता है। ओके, इसलिए एड्रेस और डेटा के बीच में डिले है। लेकिन यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ तो डेटा खुद माइक्रो प्रोसेसर के पास ही बैठा है, जो मेमोरी में लिखने का है वो खुद इसके पास बैठा है, माइक्रो प्रोसेसर के पास, उसको सिर्फ निकलने का है। तो जब एड्रेस आउट है
तो एड्रेस आउट तो चला जाएगा उसके एड्रेस के लिए कि कहाँ पे डेटा को डालना है, लेकिन डेटा तो खुद माइक्रो प्रोसेसर के पास है, जो माइक्रो प्रोसेसर से निकल के मेमोरी में जाएगा। इसलिए जैसा एड्रेस आउट हो गया वैसे उसके पीछे डेटा भी चला जाता है, उसमें डिले नहीं है। Such type of questions are asked in the Viva. These are very minute things you should know. Okay, so that is why there is no delay between the address out and the data out. Okay, next one. Can you see the ALE now? ALE में भी वही है, मैंने बताया था T1 में वो एक छोटा सा पल्स जाएगा T1 ड्यूरेशन का। बाद में M/IO बार, हम मेमोरी को राइट कर रहे हैं इसलिए वो हाई है। उसके नीचे वाला हमको राइट करना है, हमको रीड नहीं करना है, तो WR बार इट इज एक्टिव लो। तो वो देखो वो पहले हाई है, वो एक्टिव लो कब होगा? T2 स्टेट में एक्टिव लो होगा, और वो कब तक रहेगा? वो रहेगा T4 के बीच में तक, और बाद में फिर से हाई हो जाएगा। ओके, उसके नीचे जाओ, उसके नीचे क्या लिखा है? DT/R बार। DT/R बार मीन्स हमको डेटा भेजना है, हमको भेजना है, ट्रांसमिट करना है फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टूवर्ड्स द मेमोरी। तो डेटा/R बार क्या होना चाहिए? पहले 0 है, बाद में हाई, बिकॉज इट इज DT, इट इज एक्टिव हाई, और R बार इज एक्टिव लो। ओके, तो मुझे ट्रांसमिट करना है, तो वो शुरुआत से ही हाई रहेगा जब तक डेटा पूरा ट्रांसमिट नहीं होता है। एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ DN बार? DN बार इज एक्टिव लो। द सेम थिंग जो रीड में था, सेम थिंग अप्लाइज हियर, कि वो पहले हाई रहेगा T1 में, T1 तक, एक मिनट मुझे देखने दो, हाँ T1 तक हाई रहेगा, और जैसे स्टार्ट होगा T2 का स्टेट वो लो हो जाएगा, और लो रहेगा कब तक? जब तक वो डेटा पूरा ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके, दिस इज डेटा अनेबल, DEN। ओके, DEN, okay, that is data enable, that is pin number 6, active in minimum mode of operation and used to enable trans receiver को enable के लिए होता है, and it is active low। तो आपका T2 के स्टेट में ही वो लो जाएगा, और जब तक वो डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है T4 तक वो लो रहेगा। ओके, तो तब तक कहने से वो ड्यूरेशन जब तक वो लो है तब तक आपका ट्रांस रिसीवर एक्टिव है। जब DN बार हाई हो गया, ट्रांस रिसीवर एक्टिव नहीं है। अभी एक्टिव होने की क्या जरूरत है? डेटा ट्रांसमिट कर दिया उसने। ओके, तो तुरंत आपका DN बार जो लो था वो बाद में T4 के बाद वो हाई हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द रीड एंड राइट फॉर मिनिमम मोड। नाउ आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। सर वो जो RD बार है सर, वो पहले 2 साइकिल्स के लिए हाई रहता है, फिर 2 साइकिल के लिए लो रहता है सर, वो नहीं समझा। एंड सेम WR बार। हाँ मैं बताता हूँ, ये RD बार ना? यस सर। ये आपको रीड करना है, आपको रीड करना है। आप रीड कब करोगे? जब डेटा मिल जाएगा। लेकिन डेटा आपको मिल रहा है T3 में, आपको डेटा कब मिल रहा है? T3 में डेटा मिल रहा है। आप पहले से पहले से RD बार 0 करके क्या करने वाले? इसलिए इनिशियली T1 और T2 के बीच में तक RD बार हाई होता है, और बाद में वो लो हो जाता है डेटा मिलने के कुछ देर पहले वो लो हो जाता है। लो हो गया, लो होने के बाद डेटा भी आ गया, रीड हो रहा है, रीड होने के बाद डेटा रीड होने के बाद देन इट विल गो हाई। अभी आप अगर टू द स्केल देखोगे, डेटा जरा सा बाकी है लेकिन वो तुरंत हाई हो गया, लेकिन दैट ड्यूरेशन में योर डेटा विल बी अवेलेबल इन द डेटा बस। ये डेटा इन का मतलब है कि डेटा बस पे बैठ गया, वो डेटा पैसेंजर जो बस में बैठ गया है। जब डेटा पैसेंजर बस में बैठ गया है तो आप आराम से रीड करते रहो, लेकिन जब डेटा बस में है तो आप रीड कर लोगे और आप खुद को हाई कर लोगे। ओके, इसलिए जो डेटा इन है ना, दैट इज अवेलेबल ऑफ डेटा इन द डेटा बस, और जब डेटा बस पे अवेलेबल है तो तुरंत रीड हो जाएगा, इसलिए फिर वो RD बार रीड होने के बाद तुरंत 0 से हाई हो जाएगा। अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन किया है कि डेटा बस में आ गया, RD बार ने रीड कर लिया और तुरंत फिर वो 0 से हाई हो गया, T4 में वो 0 से हाई हो गया। ओके, तो टू द स्केल देखोगे तो ऐसा मत समझो कि डेटा तो भी अवेलेबल है, लेकिन ये फिर 0 से 1 कैसे क्या होगा? डेटा इन अवेलेबल, इसका मतलब डेटा बस पे अवेलेबल है और रीड हो गया। दैट इज मीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर, और सर राइट के लिए भी सेम लॉजिक है ना? हाँ, सेम लॉजिक। हाँ, अगर आपको सर एक दिखाना और तो क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। जो इंस्ट्रक्शंस है वो सर, वो जो साइकिल AD15 to AD0 और उसके पहले वाला जो साइकिल है सर A19 to A6 सर, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है क्या सब?
ALE वाला और DEN bar sir. सब yes you can make a statement that whatever the instruction you use clock के बाद वाला एड्रेस और ALE ये हमेशा ऐसे रहने वाले, क्योंकि मुझे पहले एड्रेस चाहिए तभी तो जाके मैं डेटा लूंगा या फिर डेटा लिखूंगा। तो सबसे पहला, इसलिए तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी बताया था, T1 साइकिल क्लॉक साइकिल इज डेडिकेटेड फॉर एड्रेस। और एड्रेस जब मिलता है, राइट रहो या रीड रहो, बाद में फिर डेटा जाता है, इसलिए वो जो थर्ड वाला जो है ना AD0 से लेके AD15 उसमें भी वही है। आपके जो लोअर 15 बिट्स का जो एड्रेस है वो T1 में एड्रेस आउट बोल के आया है, और वो होने के बाद अगर 20 बिट का एड्रेस है तो ऊपर भी देखो बाकी बचे वाले A16 से लेके A19 वो भी ऊपर उसमें आ गए है। वो होने के बाद यानी वो लोकेशन मिल गया है, वो लोकेशन मिलने के बाद फिर आपका डेटा आ गया है। T3 के कुछ देर के बाद डेटा आ गया डेटा बस में, यानी एड्रेस बस का काम होने के बाद फिर वो बस कन्वर्ट होती है डेटा बस में, ताकि डेटा लेके जाए, अगर रीड करना है या फिर मेमोरी के पास भेजना है तो वो राइट हो जाए। दैट इज द मीन। ओके सर। हाँ, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? नाउ आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, जो मैंने आपको स्लाइड्स दिया है ये डायग्राम के हिसाब से वो अभी स्लाइड्स पढ़ना है। ओके जैसे अभी ये देखो, ये मैंने आपको नहीं ये जो कंसिस्ट ऑफ फोर टाइम स्टेट्स T1 मेमोरी एड्रेस इज ऑन द एड्रेस बस, अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, दिस इज विद रेफरेंस टू द डायग्राम एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल हियर। तो अगर आपको डायग्राम प्रॉपरली समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी थरो, so I want everyone to do the read and write bus cycle as far as maximum mode is concerned. I have explained for the minimum mode. Okay, I was expecting more questions. अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, या फिर मैंने अच्छे से पढ़ाया नहीं, आपको समझ भी नहीं आया, सब ऊपर से गया। सर मतलब सर कुछ कॉन्सेप्ट सर समझा सर, लेकिन बीच में थोड़ा सा सर मैं लॉस्ट हो गया सर, इसलिए मतलब। ठीक है, नो प्रॉब्लम, you can ask me tomorrow also, there is absolutely no problem. Before I start with the new topic, next module, I will take your questions. ठीक है ना? आप सब लोग वही करो, मैंने जो एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली, आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दैट। ये मेरे जो स्लाइड जो मैंने नोट्स भेजे वो भी प्रॉपर पढ़ो, कम विथ योर क्वेश्चंस। कहीं पे क्वेश्चंस लिखो, टाइम पे याद नहीं रहते। ओके, कहीं पे तो क्वेश्चंस लिख के रखो, तो नेक्स्ट टाइम या फिर कल मेरा लेक्चर है, तो कल लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आई विल टेक योर क्वेश्चंस। इज इट ओके? यस सर। ओके, so no questions from your side? Not yet, sir. Not yet. Okay, hoping to have questions tomorrow, अगर प्रॉपर समझ में आया तो। स्क्रीन शेयर स्टॉप कैसे करना है? हाँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, परमेश्वर इज देयर? नहीं है सर। नहीं है क्या? ओके, कौस्तुभ यस सर। सर 2 प्रेजेंट। समझ में? नहीं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ मैं, रुको। कौस्तुभ समझ में आया? यस सर थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया। हाँ, तो फिर प्लीज आप ये प्रॉपरली करो, ठीक है? ओके, परमेश्वर इज देयर ना? परमेश्वर इज देयर? हाँ सर। हाँ, आपको लेना तो ले लो, मुझे पकड़ के 75 है। सर कभी कभी 2 लॉगिन भी रहता है ना, तो अच्छा अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ, आंसर रोल कॉल स्टूडेंट 1 सर रिकॉर्डिंग कर लो। वन प्रेजेंट मैम 2
सर